several years, they are called polycarpic. Example, many perennial fruits bears trees, जैसे कि मैंगो क्या गुआवा का हर साल देते हैं, हर 2 सीजन छोड़ के वो अपना फ्रूट देते हैं। Initiation of flowering, as a seed germinate, a new plant will emerge. Seed germinate होगा, एक new plant form होगा, the young plant grows vigorously and continue to grow till it attain a definite shape and size when its vegetative parts are well developed. This phase is called juvenile phase, young phase कहते हैं. At a certain point of completion of vegetative phase, reproductive phase और adult phase यहाँ पर floral apex develop करता है, flower bear करता है. This transition of vegetative or flowering state takes several years in trees, but only few weeks in animals. Juvenile shoot and adult shoot में difference क्या होता है? They are soft, small and few leaves. यहाँ पर जो well developed branch रहती है और बहुत सारे leaves रहते हैं. The shape and size remains same, but adult shoot में shape and size leaves के change होते रहते हैं. Juvenile shoot में shoot does not respond to stimulus to produce flower. Okay, तो flower produce नहीं. लेकिन adult shoot रहती है वो यहाँ पर flower produce करती है. In cereals, the minimum of 7 leaves must be developed before the plant can flower. यहाँ पर जब 7 leaves produce हो जाएंगे उसके बाद ही जो flower होता है वो flowering शुरू होती है. कौन से फैक्टर है जो flowering को affect करती है? That flowering plant affected by temperature, light. Okay, that vernalism means temperature, the low temperature जो कि flower which stimulates early flower. जब temperature low रहेगा तो flowering होगा वो जल्दी हो जाएगा. ना photoperiodism जो कि light से affect stimulus means that is biological response in growth of flowering to duration of light receives in physically sequence for. Okay, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए जो light रहेगी तो ज़्यादा flowering के chances रहेंगे. Sex in flower. Okay, so you have studied chapter 5 shoot system में बताया था हमने. They are bisex. Okay, यहाँ पर एक flower यहाँ पर represent करता है कि कौन से sex का plant है. तो यहाँ पर जब भी उसमें male and female दोनों organs रहेंगे, sexual organs रहेंगे, तो वो bisexual कहलाएंगे. या फिर जो male and female organ हो जाते हैं उनके वो होते हैं pollen grains, means anther and stigma. Okay, तो gynosphere and androsphere. ओके, तो वो दो प्लांट है एंड्रोसियम और गाइनेशियम. लेकिन जब दोनों में से कोई एक ही रहेगा तो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल या फिर स्टेमिनेट या फिर पिस्टिलेट. इन सम डायस्टर स्पीशीज देयर मे बी अ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ डिटरमिनेशन. फॉर एग्जांपल XX and XY क्रोमोसोम. और मेल एंड फीमेल प्लांट्स मे आल्सो exhibit difference in level of their growth substance. For example, plant of cucumis which bear male flower having high gibberellin content as compared which bear only female flower. Gibberellin ज़्यादा होगा तो only female flower यहाँ पर develop करता है. Cucumis and application of gibberellin from outside can introduce the formation of male flowers even in genetically female plants. Treating male plants with auxin और इथाइलिन may develop functional female flower. तो यहाँ से हम alter कर सकते हैं कोई भी plant का sex जिसकी वजह से हम उसे रिप्रोड्यूस करा सकते हैं. हाउ रिस्पांस हैव बीन सीन इन कैनबिस. जो कैनबिस में ये रिस्पांस देखता है में ऑक्सिन और गिबरेलिन्स का. पार्ट्स क्या होते हैं प्लांट्स के जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो कैलिक्स होता है पहला कंसिस्टिंग ऑफ सेपल्स, कोरोला कंसिस्टिंग ऑफ पेटल्स, एंड्रोशियम दैट कंसिस्टिंग ऑफ स्टेमन एंड गाइनोशियम और पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ कार्पस. फिर तो ये मेन पार्ट है रिप्रोडक्शन के और ये है एसेसरी प्लांट्स. टू ट्राई टू रिकलेक्ट नॉन एसेंशियल्स या फिर एसेसरी होल्स जो कि ऊपर आते हैं कैलिक्स कोरोला में. एंड द एंड्रोशियम गाइनोशियम आर नोन एज एसेंशियल होल्स. दे आर एब्सेंट फ्लावर में. अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो फ्लावर सेक्सुअल प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. स्टेमन माइक्रोस्पोरेंज जैसे प्रोडक्ट. अब जो है हम मेल पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर कंटेनिंग 4 pollen sac or microsporangia supported by a slender filament. Each sporangium contains mass of large cells showing prominent nucleus and abundant cytoplasm. These are the sporangious cells or a microspore mother cells. Each microsporangium when mature has a wall made up of distinct layer of cells. तो ये mature microsporangia है जो कि pollen grains develop करते हैं जिसकी वजह से pollination होता है, then fertilization होता है और new plant develop होता है. The outermost is called epidermis, the middle layer, and the innermost is called tapetum. Tapetum का फंक्शन ये रहता है कि जो भी pollen grain develop हो रहा है उसे नरिश करे, न्यूट्रिशन दे जिसकी वजह से वो अच्छे से डेवलप हो.
The next is a microspore. Mother cell undergo meiosis and each of the चार हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जनरेट होते हैं जो कि एज अरेंज रहता है अरेंज टेट्राड में मींस चार चार के पेयर में रहते हैं एंड देन दे टूटते हैं और एक एक पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल पोलन ग्रेन, तो पहली बात द आउटर एक्साइन जो रहता है, ओके, जो माइक्रोस्पोर रहता है उसकी प्रिंसिपल लेयर्स जो कि आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं एक्साइन और इनर लेयर को कहते हैं इंटेक। तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि उसे रेजिस्ट करता है एक्सट्रीमिटी बाहर कोई कितना भी ज्यादा टेम्परेचर रहेगा या फिर कितना भी सॉल्टी रहेगा, लेकिन जो पोलर ग्रेन रहेगा वो एग्जिस्ट करेगा। उसकी जो प्रॉपर्टी है पॉलिनेशन की जो कि अंदर गैमेट्स प्रेजेंट है वो नहीं कहीं जाएंगे, तो ये रिस्पांसिबल है स्पोरोलिन इसके पीछे की जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है। पोलन ट्यूब ग्रोज आउट द पोलन ग्रेन थ्रू द जर्म होल। इनर thin cellulosic wall is called inner की wall को हम intact कहते हैं। The microspore nucleus moves toward the periphery and cell divides into the large vegetative cell and small vegetative। तो पोलन ग्रेन के अंदर दो पार्ट रहता है जो कि होता है वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। दो तो जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है, जनरेटिव सेल वो छोटा होता है। तो at this stage the pollen grain release and rupture on the strontium along the line of diaxis of enzyme। The pollen grain itself not a male gamete, not a male gamete, it is structure which produces male gamete। तो pollen grain है वो यहाँ पर male gamete नहीं है, लेकिन जो structures produce करता है छोटे छोटे वो male gametes कहलाता है। Therefore pollen grains is regarded as a male gametes in a plant। ओके, तो उसे ही हम मानते हैं कि वो एक male gamete। तो pistil megasporangium and embryosacc, तो यहाँ पर जो फीमेल पार्ट है जो सेक्सुअल reproducing part of plant जिसे कहते हैं pistil megasporangium and embryosacc। The main part of ovule is in the inner integument and leaving a micropylate। तो यहाँ पर जो तो जो पोर रहता है वो कुछ ऐसा रहता है। ये स्पोरोपोलिन की लेयर हो जाती है, ओके, और यहाँ पर एक ओपनिंग रहता है, ओके। तो यहाँ पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं रहती और ऐसे डिवाइडेड, तो बड़ा बोला होता है वो वेजिटेटिव एंड जो छोटा रहता है वो जनरेटिव। तो जब भी वो पॉलिनेशन करेगा तो ऐसे पोलन ग्रेन पे फीमेल स्टेमिनोड पे आएगी, ओके, फीमेल पार्ट पे, तो यहाँ से पोलन ग्रेन जनरेट करेगा और अपने गैमेट्स को भेजेगा फीमेल के पास, अपने गैमेट्स को भेजेगा फीमेल के पास और यहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा। देन दिस ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, और जो ओव्यूल्स थे उसके अंदर दो डेवलप होते हैं यहाँ पर सीड्स में। तो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन ऐसे होता है, हम उसे और डीप में देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। A female gamete में the gynoecium or pistil represent a female reproductive part in flower। Each pistil consists of stigma, style and ovary। Okay, तो stigma, style, ovary होती है उनकी फीमेल पार्ट्स पे, and ovary contains one or more ovules which after fertilization they give rise to seeds, and ovary develop into the fruit, and ovule develop as a projection of a placenta in ovary. It consists of a parenchymatous tissue called nucellus which is covered by one or two covering called integuments। तो यहाँ पर इसे हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, ये है तो उसे हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं जो कि ओव्यूल्स को कवर करता है। Then the micropylate is pollen tube may enter at this stage, और जो pollen tube ऊपर से आती है वो यहाँ से एंटर होती है जो कि गैमेट्स को यहाँ पर फर्टिलाइज करवाती है। And this called funicle which is attached to the placenta beyond, और यहाँ पर नीचे एक जो ओवेरी के इनर वॉल से कनेक्टेड रहता है प्लांट के, वो उसे फ्यूनिकल कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल gamete, within the nucellus a single hypodermal cell enlarge and become a megaspore mother cell which undergoes meiotic division and give rise to 4 haploid megaspore cells
Usually three of them degenerate and the remaining one become the functional megaspore. The functional megaspores enlarge and its haploid nucleus and attend to three successive mitotic division. As a result, 8 haploid cells are formed and the enlarged ovule structure get 8 haploid. Okay, तो इस पूरे सेक्शन को हम पढ़ेंगे. ये हो जाता है एम्ब्रियो सैक. ओके, जो कि कहाँ पर होता है? इंटेग्यूमेंट्स. ये एम्ब्रियो सैक, ये अगेन इंटेग्यूमेंट और ये यहाँ पर इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक, जो कि ओवेरी में होता है. ओके, ओवेरी में होता है. तो उसमें डेवलप कैसे होता है? पहली बात विथ मियोसिस. मियोसिस यहाँ पर 1 2 3 4 सेल डेवलप होते हैं. विथ मियोसिस यहाँ पर 4 सेल डेवलप होते हैं. देन 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाता है. 3 है वो डीजनरेट हो जाते हैं. तो एक बचा, वो एक यहाँ पर माइटोसिस करेगा. माइटोसिस करेगा और 3 बार माइटोसिस. फर्स्ट टाइम 1 2 3 4, सेकेंड टाइम और ये फिर 2. 1 2 3 4 5 6 8 और ये थर्ड टाइम. यहाँ पर 3 टाइम माइटोसिस करेगा. एट द एंड ऑफ थर्ड टाइम माइटोसिस हमारे पास 8 सेल आ जाएंगे. देन हमारे पास 8 सेल है, मींस यहाँ पर है हमारे पास 8 सेल. 1 2 3 4 5 6 8. ओके, फिर ये यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेंगे. रीअरेंजमेंट करेंगे जो कि यहाँ पर देन आगे होगा. रीअरेंजमेंट होगा जिसमें जो सेल रहेंगे हमारे पास 8 सेल है. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 3 सेल यहाँ पर चले जाएंगे. 1 2 3. ओके, 3 सेल है. फिर ये तो यहाँ पर सेंट्रल न्यूक्लियस है. 2 यहाँ पर सिनर्जिड्स फॉर्म करेंगे. एक सेल यहाँ पर, एक एग सेल. तो ये इसे रीअरेंजमेंट कहते हैं. जहाँ पर 3 सेल है वो एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं. एंटीपोडल सेल्स ये सेंट्रल न्यूक्लियाई. ये दो जो सेल्स है उसे कहते हैं हम सिनर्जिड्स. एंड ये है वो एग सेल है. एग सेल जो कि फर्टिलाइज करता है. एग सेल. अब जो पोलन ग्रेन ऊपर से आएगा वाया पोलन ट्यूब. ओके, यहाँ से पोलन ग्रेन में से गैमेट्स आएंगे. 2 गैमेट्स आएंगे जो कि यहाँ पर एक एग के साथ है. ओके, द वेरी फर्स्ट वन विल डीजनरेट द सिनर्जिड एंड जो दूसरा होगा वो एग के साथ होगा और यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन कहलाएंगे. ओके, इनिशियली दे आता है. तो आप इस वीडियो में देखते हैं. तो ये हो जाता है हमारा एम्ब्रियो से. ये हो जाता है हमारा माइक्रोपाइल एंड. ये हो जाता है माइक्रोपाइल एंड. यहाँ पर लिखा है माइक्रोपाइल. माइक्रो पी वाई एल माइक्रोपाइल एंड. ऊपर से यहाँ पे पोलन ट्यूब आएगी. यहाँ पर ओके, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल. याद करो, पोलन ग्रेन था, उसमें आउटर लेयर ऐसी थी और अंदर 2 पार्ट थे. एक वेजिटेटिव पार्ट था, एक जनरेटिव पार्ट था. ओके, तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. तो बड़ा वाला था वेजिटेटिव पार्ट, वो यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो टोटल हो जाएंगे हमारे 3 सेल.
यहाँ पर दो सिनर्जी प्रेजेंट है, एक एक्सेल प्रेजेंट है, दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है एंड 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, मींस टोटल 8। ओके, तो यहाँ पर 7 सेल। ओके, इस स्टेज को कहते हैं एम्ब्रियो साइट के। एम्ब्रियो साइट में ये स्टेज जो हुआ है जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई, दो सिनर्जीज, एक एक्सेल एंड 3 एंटीपोडल सेल्स, इस स्टेज को कहते हैं हम 7 सेल्ड स्टेज, क्योंकि इसमें 7 सेल है। और कहते हैं उसे 8 न्यूक्लियाई स्टेज, NUCLEI, 8 न्यूक्लियाई स्टेज, क्योंकि इसमें 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। एक ये पूरा सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियाई। ओके, तो 8 न्यूक्लियाई स्टेज या फिर 7 सेल स्टेज। और जब 3 ये सेल आएंगे, ये 3 सेल, द फर्स्ट वन विल डीजनरेट द सिनर्जिड। ओके, यहाँ पर ये सिनर्जिड को डीजनरेट कर देगा, जिसकी वजह से ये ड्रग हो जाएगा। ओके, यहाँ से इरेज हो जाएगा। देन द नेक्स्ट सेकंड वन विल फर्टिलाइज विद एग सेल, जो कि फर्टिलाइजेशन होता है। एंड जो थर्ड वन विल फर्टिलाइज विद द पोलर न्यूक्लियाई, दैट्स व्हाई इसे कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। 3 बार फ्यूज हुआ, एक सिनर्जिड के साथ, एक सेल के साथ, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसकी वजह से इसे कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। ओके, तो ये होता है पूरा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर वही देखा गया। ओके, तो फंक्शन जो 2 and 3 and cell form of antipodal synergy, जो कि हमने देखा। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। तो यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट मिलते हैं कैसे एक दूसरे से। ओके, when a mature pollen grain released from an anther, they carry to the stigma। ये जो एंथर है, ओके, तो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर एंथर से स्टिग्मा तक से जाना है फॉर फर्टिलाइजेशन, एक न्यू फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन करने के लिए स्टिग्मा तक जाना है। With the pollination, that is called a transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower. Next is the pollination, दो टाइप के होते हैं, self pollination and cross pollination। The self pollination is the transfer of pollen grain to the stigma from same flower। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे self pollination and cross pollination। ओके, self pollination and cross pollination। ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर। प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2 में यहाँ ड्रॉ होगा। जब यहाँ का एंथर उड़ के यहाँ पे जाएगा, मींस डिफरेंट फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। ओके, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाएगा, तो यहाँ पर उसे कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब यहाँ का एंथर यहाँ जाएगा, या फिर यहाँ जाएगा, या फिर यहाँ जाएगा, ओके, लेकिन दूसरे प्लांट तक जाएगा, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये डिफरेंस था, अगर सेम फ्लावर पर जाता है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और दूसरे फ्लावर पर जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिनेशन की? इट रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। ओके, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नए प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे। अ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर फ्रॉम विद न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन क्रॉस पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाएगा, जिसकी ऑब्वियस है कि कोई उसमें जेनेटिक वेरिएशन आएगी, क्योंकि डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है, तो जिसकी वजह से वेरिएशन आएगा, न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट फॉर्म होंगी। During pollination, pollen tube produce growth hormone which stimulate ovary to develop fruit। जब pollination होता है, fertilization, fusion होता है, तब जो pollen tube है वो ऐसे hormones रिलीज करती है जिसकी वजह से जो ovary होती है वो fruit में डेवलप होती है, जिसकी वजह से fruit फॉर्म होता है और seeds डेवलप होता है। Next, the cross pollination brought by various external agencies such as wind, insect, water, birds and other animals, जो कि different pathways है जिसकी वजह से जो cross pollination है वो होता है। तो जब विंड से होता है तो हम उसे कहते हैं एनीमोफिली। ओके, एनीमोफिली। जो फ्लावर्स होते हैं उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, जैसे कि फ्लावर्स छोटे होते हैं, विदाउट कलर के होते हैं, नेक्टर एंड सेंट। ओके, तो कोई भी नेक्टर सेंट नहीं होता। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं विंड से उड़कर दूसरे प्लांट फ्लावर तक पहुंचते हैं,
फ्लावर प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू अलाउ अ वेस्टेज व्हेन पोलन ग्रेन्स आर कैरिड आउट थ्रू द विंड्स। ओके, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन जनरेट होते हैं क्योंकि विंड से वो फ्लो आउट उड़ जाते हैं और दूसरे फ्लावर तक पहुंचता होता है, तो देयर विल बी मोस्ट मिनिमम चांसेस, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो एक करेक्ट प्लांट तक पहुंचे। The pollen grains are small, lighting in color and sometimes provided wings। तो यहाँ पर wings होती है या फिर lighting color रहता है। The stigmas are comparatively large, protruding and sometimes hairy to track pollen grain from a wind from large। जो स्टिग्मा भी होता है वो भी यहाँ पर एक होता है कि उसमें भी हेड्स होते हैं जो कि उड़ते हुए पोलन ग्रेन को कैच करें। नेक्स्ट जब इंसेक्ट्स होगा तो उसमें कहेंगे एंटिमोफिली। एंटोमो मींस इंसेक्ट। तो यहाँ पर फ्लावर्स आर यूजुअली लार्ज कलर्ड एंड जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाले सब कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। सम ऑफ दीस फ्लावर्स सीक्रेट नेक्टर्स टू अट्रैक्ट इंटर, जिसकी सेल्विया है वो यहाँ पर स्पेशल एडेप्टेशन शो करता है फॉर बीज के। यहाँ पर अंदर उसका जो नेक्टर होता है, तो जब भी बी उसके अंदर एंटर होगी तो यहाँ पर स्टिग्मा है उसका। ओके, तो यहाँ पर जब भी कोई बी एंटर होगी तो बी पर में भी चांसेस हो रहेंगे कि वो कोई एंथर लेकर आया है। तो जब भी वो अंदर नेक्टर लेने के लिए जाएगा तो जो यहाँ पर बी के बॉडी पर जो भी एंथर लगे वो स्टिग्मा से जॉइंट हो जाएगा और पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली, क्योंकि बाय वाटर। दिस टेक्स प्लेस इन एक्वेटिका। मेजॉरिटी वो एक्वेटिक प्लांट में रहते हैं। देन पोलन ग्रेन्स आर लार्ज इन नंबर, जो कि वाटर से जाएंगे, चांसेस कम रहेंगे। देन दे आर फ्लोट ऑन द सरफेस टिल द लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द गार्ड। जब तक वो लैंड नहीं होते तब तक वो सरफेस पर ही तैरेंगे पानी पे। तो नेक्स्ट इज बाकी अदर एनिमल्स, जैसे कि जूफिली। इसे जूफिली कहते हैं कि बाकी कोई ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से वो पॉलिनेशन कर रहा है। फ्लावर्स जैसे फ्लावर ऑफ सच प्लांट व्हिच अट्रैक्ट्स एनिमल बाय देयर ब्राइट कलर, साइज एंड सेंट। ओके, तो ये सब उनमें कैरेक्टरिस्टिक रहती है। एग्जांपल सनबर्ड पॉलिनेट्स फ्लावर ऑफ कैना एंड ग्लैंडियोली and squirrels pollinate flower of skin cotton trees। तो squirrels भी यहाँ पर pollination में हेल्प करती है। Humans carry out artificial pollination in number of plants, they produce desirable hybrids। जो humans है वो यहाँ पर artificial pollination शो करते हैं जिसकी वजह से desired characteristics वाले हम plants produce कर सके। Some adaptation to promote cross pollination, that is unisexuality, dichogamy and self sterility। तो ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसकी वजह से जो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करता है और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देता। दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी, मींस जो फ्लावर डेवलप होंगे वो एक ही सेक्स के होंगे, जिसकी वजह से ऑलवेज जो मेल एंथर है उसको क्रॉस पॉलिनेशन ही करना होगा, क्योंकि उस प्लांट में सारे मेल ही रहेंगे और दूसरे प्लांट में सारे फीमेल रहेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस 100% रहते हैं। देन इज डाइकोगैमी, जो मैच्योर होने का टाइमिंग है। जब फीमेल ऑर्गन मैच्योर होगा तो मेल ऑर्गन मैच्योर नहीं होगा, और जब मेल ऑर्गन मैच्योर रहेगा तो फीमेल ऑर्गन मैच्योर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। एग्जांपल यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल का। एंड सेल्फ स्टेरिलिटी मींस पोलन ग्रेन्स जो है वो खुद के प्लांट्स के ऊपर फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, खुद के प्लांट्स को ही वो स्टेराइल कर देंगे। मींस ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन मींस दूसरे के प्लांट का स्टिग्मा ही वो एक्सेप्ट करेगा। डिवाइसेस टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, जो डिवाइसेस है जिसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, तो जैसे होता है क्लिस्टोगैमी जिसमें फ्लावर वो क्लोज ही रहते हैं, तो अंदर का एंथर अंदर ही स्टिग्मा में डेवलप हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट द सेम टाइम, जब सेम टाइम पर मैच्योर हो गए तो सेम टाइम पर वो एंथर रिलीज करेंगे। बेटर वही होगा कि एंथर खुद के स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन आगे हो। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। पोलन आर रीचिंग द राइट स्टिग्मा, जब भी वो स्टिग्मा पर लैंड करेगा तो वो एक पोलन ग्रेन एक्सर्ट करेगा। ओके, तो ईच पोलन ग्रेन फॉर्म अ स्मॉल ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब व्हिच इमर्ज फ्रॉम अ जर्म पोर। ओके, तो जो होल था पोलन ग्रेन में जहां पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं थी तो उसे कहते हैं हम जर्म पोर। द कंटेंट्स ऑफ अ पोलन ग्रेन मूव इनटू द ट्यूब एंड ट्यूब न्यूक्लियस ऑक्युपाइज द टिप ऑफ अ पोलन ट्यूब। Pollen tube grows through a tissue of a stigma and style and finally enters the ovule through microbiome. Vegetative nucleus or a tube nucleus degenerates and two sperms now occupy the tip of the pollen tube। यहाँ पर दो sperm और एक vegetative nucleus यहाँ पर pollen tube में enter होते हैं। Tip of pollen tube possess
passes through a synergids, ओके, तो एक synergid के साथ फ्यूज हुआ, दूसरा egg के साथ फ्यूज हुआ है, जो थर्ड था वो न्यूक्लियस था, जो बीच वाला सेंट्रल न्यूक्लियस, उसके साथ फ्यूज हुआ, जिसकी वजह से ट्रिपल फ्यूजन कहा गया, क्योंकि 3 बार फ्यूजन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो डबल फर्टिलाइजेशन शो करता है। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म के बीच में 3 न्यूक्लियस थे, ओके, वहां पर पहले 2 थे और फिर फ्यूजन के बाद 3 थे, वो एक एंडोस्पर्म में डेवलप होता है, दे विल बी डेवलप इनटू एंडोस्पर्म एंड प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द एग, जो जाइगोट में फॉर्म होगा उसके लिए। Endosperm provide the food to the developing embryo, and the synergids and antipodal cells also degenerate to contribute not young embryo. Okay, to contribute nutrition to the young embryo. Significance of fertilization, तो importance क्या पड़ता है कि stimulus to the growth of ovary. okay, जब भी पोलेटिव एंटर होती है तो वो ओवेरी को स्टिमुलस देता है कि वो फ्रूट फॉर्मेशन करना है, एंड हेल्प्स इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, डिफरेंट स्पर्म्स जो कि एंथर से आएंगे वो यहाँ पर मिक्स हो गया और जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होगा, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, तो 3 टाइप के एंडोस्पर्म यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, हेलोपेल एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड थर्ड था वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। In the development of embryo, because zygote divides into 2 cells, जो upper cell प्रोसेस है कि पहले सस्पेंसर सेल्स डेवलप होते हैं, देन एम्ब्रियो का मास डेवलप होता है, देन सस्पेंसर सेल वैसे रहते हैं और एम्ब्रियो का मास बढ़ जाता है, देन हार्ट शेप, देन हॉर्सशू शेप, एंड देन द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड। ये पूरी प्रोसेस बताएंगे। व्हाट आर द पॉली एम्ब्रियोनिक, पॉली एम्ब्रियोनिक क्या है, द रिकॉल एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है तब जो डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज में ड्यू टू, जब डिवीजन ऑफ सेल, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसके सेल डिवाइड होकर 2 एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं, एज सेम एज ट्विंस, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में ट्विंस का डेवलपमेंट होता है, उसी सेम वे में जैसे कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है प्लांट्स में, तो वो टूटकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। The zygote may divide to give rise to one or more cell which develops in separate embryo, which is called cleavage embryony. And then seed, तो seed को यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके 3 लेयर में, that seed coat, embryon and endosperm, जो कि एल्यूमिनस में ही होता है, तो सीड कोट की दो लेयर, जैसे आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट, एंड एम्ब्रियो, यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलॉन, एक होते हैं या फिर 2 होते हैं, मोनोकॉटिलॉन, डाइकॉटिलॉन, और एम्ब्रियोनल एक्सिस डिवाइड होती है प्यूमिन में, जो प्यूमिन होता है वो शूट सिस्टम जनरेट करता है, जो रेडिकल होता है वो रूट सिस्टम जनरेट करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, it contains embryo which develop into a new plant, and the seed coat protects the embryo against dehydration and mechanical damage. The seed can be stored and transferred from one place to another place, thus they are been dispersal, और वो germination के टाइम में वो डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर डाइकोट स्टेम पढ़ेंगे जिसमें and monocot stem, okay, तो the seed is enclosed in a pod, pod में enclosed रहेगा, conical in shape रहेगा, the seed is attached to a small stack, attached to a seed called stack called hilum, and testa is ground seed को, जो कि हम ग्राम की बात करें, ग्राम seed की, below it is a small pore called micropyloric hole रहता है, and embryonal axis is also called to fleshy cotyledon, और उसमें 2 cotyledons रहते हैं। जो बात करते हैं मेज ग्रेन की, जो कि होता है मोनोकॉट, द मेज ग्रेन ब्रॉडर इन शेप बड़ा रहता है, देन टेस्टा एंड टेगमेंट आर फ्यूज टुगेदर, इसमें फ्यूज रहते हैं एंड फॉर्म करता है पेरिकार्प, then embryo is towards the narrow side, embryo होता है वो narrow side के साइड रहता है, and endosperm stores starch and protein, जो endosperm रहता है वो starch and protein रहता है, जिसमें जो न्यूट्रिशन है वो एम्ब्रियो ने पूरा नहीं लिया, that's why endosperm में और अभी न्यूट्रिशन है जो कि हम लेते हैं। The outermost layer which is contain also protein in alluron layer, यहाँ पर alluron layer present होती है जिसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। The embryo consists of one large cotyledon, जिसकी scutellum, and embryonal axis lies in the scutellum, and यहाँ पर fibers भी present रहते हैं, जिसे कहते हैं पोलियोकाइन, पोलियोराइजा, जिसके अंदर plumule and radicle present रहते हैं। Next is the fruit. Fruit is defined as a ripened ovary. Okay, तो fruit जो ओवेरी है वो राइप कर फ्रूट में डेवलप होता है, एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्रूट आ जाते हैं। पहली बात तो उसका सीड, कि उसके अंदर सीड प्रेजेंट रहते हैं, इट प्रोटेक्ट्स सीड ऑन डीके, फ्रूट व्हिच कंटेन अ केमिकल सब्सटेंस एनरिच्ड इन द सॉइल, इट हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ सीड।
Unripe fruit has been different shape but no smell, but the same fruit which ripe has had a good taste and smell. जैसे कि banana and mango, the following changes takes place. तो starch is converted into sugar. जैसे ripe होगा fruit, वो starch वो sugar में convert हो जाएगा. And the production of various organic substances जैसे कि ester वो भी involved रहते हैं for taste and flavor. The breakdown of chlorophyll leads into changing color of the skin of the fruit. और जो chlorophyll है वो टूट जाता है जिसकी वजह से different color आता है fruit में. Next is a parthenocarpy. Parthenocarpy is fertilization without formation of seeds without fertilization, but in certain plants ovary develop into the fruit जैसे grapes and banana. Seeds form नहीं होते. The phenomenon of development fruit from unfertilized ovary is called parthenocarpy. In the same way, formation of new organisms without fertilization जिसे कहते हैं parthenogenesis, जो कि animals में रहता है, और parthenocarpy plants में रहता है. Such fruits which are seedless, there are parthenocarpic fruit. Parthenocarpic fruit की commercial value की जब हम बात करें तो parthenocarpic fruits are seedless and they are hence more valuable क्योंकि हम उसे डायरेक्ट खा सकते हैं. For eating purpose and contain both absorptive seeds which cannot be developed in a new plant. These fruits contain sufficient growth hormones. Next हम seed की और डिटेल बात करें. Seed is a final product of sexual reproduction. जो seed है वो एक final product है sexual reproduction का. के end में हमारे पास seed मिलता है. It becomes relatively the metabolic activities of embryo slows down and majority of all cases, if favorable conditions are available, they germinate. Dormancy helps in plants to survive under the favorable condition and ensure its germination only under favorable conditions. जब favorable condition आएगी तभी जाकर वो germinate करेगा और again a new plant में develop होगा. Germination होता है that embryo lies in dormant seed, but when the seed receives the favorable signal and these inputs from environment and are available, they germinate. Germination is a process by which the embryo grows and establishes itself a seedling. The step of germination. The first is imbibition of water to the microbiome. Which वो imbibition means लेता है, absorb करता है water. Then seeds swell up and it get hydrated और water से भर जाता है. Then enzymes activity convert the reserved food into the soluble form. जैसे ग्लूकोज अमीनो एसिड्स में डेवलप होता है. Then seed pod burst, जो seed pod होता है वो burst होता है. Radical emerges. Radical means shoot system यहाँ पर root system emerge होती है. Then the plumule grows, then root or shoots form होते हैं. Germination can be of two types, apigeal and hypogeal. Germination वो दो टाइप के रहते हैं, apigeal and hypogeal. The apigeal when because of more growth hypocotyl, cotyledon comes above the ground and first leaves of the plant. Example castor, neem and beam and plumule of form the shoot. Then hypogeal होता है जिसमें पहले roots develop हो जाता है and then shoot develop. ठीक है, तो यहाँ पर कोई difference है जिसमें apigeal में पहले shoot develop होगी और hypogeal में पहले root develop होगी. Vegetative reproduction in angiosperm. Vegetative reproduction अभी के दौर में बहुत ज़्यादा importance role play करता है जिसमें reproduction of new plant from portion of vegetable. एक vegetative part present रहता है body में हर एक प्लांट के जिसमें से वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डेवलप होता है. First is a natural method. The natural method, a portion of plant gets detached from the body of the mother plant and grows into independent plant. The parts may be stem, leaf, root, even flower. You have studied about various modification of root. तो यहाँ पर जो unfavorable condition में ये होता है. The underground modification of said. तो यहाँ पर vegetative reproduction show करते हैं जिसकी वे में यहाँ पर बताया गया है कि जो bulb है onion, ज़मीकैंड और पिस्टिया, क्राइसेंथम जहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है. then similarly जो पोटैटो होता है वो भी जो आइस प्रेजेंट रहती है पोटैटो पर उससे डेवलप होता है. अगर आप उसे आइस वाला पोटैटो भी अगर आप सॉइल में सॉ करोगे तो तब भी वो एक पोटैटो प्लांट ग्रो होगा और जिसके माना जाता है कि जो आई है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव पार्ट है वो पोटैटो होगा. एंड समटाइम्स इवन द ब्रायोफाइलम एंड कैलेंकोई वो एक प्लांट है जिसकी लीव्स का एक पार्ट अगर आप शो करोगे तो वो पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा. Vegetative reproduction nothing but reproducing a plant other than sexual part. Okay, जो sexual part यहाँ पर present रहता है plant में उसको छोड़कर कोई भी part से अगर आप पूरा organism grow कर सकते हो तो वो part को आप vegetative part कहोगे और वो process को आप कहोगे vegetative reproduction. and यहाँ पर examples दिए हैं जो कि आप पढ़ लेना. क्या examples है जो कि vegetative reproduction show करते हैं. तो ये उसके example हैं.
आर्टिफिशियल मेथड्स क्या रहती है, ह्यूमंस हैव टेकन एडवांटेज ऑफ नेचर। ओके, तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर रहा है तो उसका हमने एडवांटेज लिया, और वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोपगेशन यहाँ पर शो किया, जैसे कि कटिंग, हमने ऑरेंज की स्टेम कट कर कर ओके लेमन के स्टेम के साथ ज्वाइन कर दिया और ग्रो करवाया, तो हमारे पास लेमन आए विथ ऑरेंज कलर, और जब हमने वाइस वर्सा किया, उल्टा किया, तब हमारे पास ऑरेंज आए विथ येलो कलर। ओके, तो यहाँ पर जो मिक्स हुआ है उसे हम कहते हैं कटिंग। मेनी प्लांट्स लाइक रोज, ओके, तो बेसिकली जो कटिंग है वो रोज में पाया जाता है, उसकी एक स्टेम लेकर हम डाल देते हैं और रोज है वो वापस ग्रो कर जाता है बहुत कम टाइम में। Cutting this plant can be grown even in water while they are straight roots and develop advantageous pod. तो stem में यहाँ पर उनके pods present रहते हैं जो कि पूरा plant develop करने में help करते हैं। Next is layering. In this method, a lower branch of plant is bent. जो lower branch है उसकी जो branch होती है वो इलास्टिक ही होती है, तो यहाँ पर उसको बेंड कर कर अगर हम ग्रास और सॉइल में डाल दें तो वो यहाँ से रूट्स डेवलप कर देगी, और रूट्स से वो वापस एक इंडिविजुअल प्लांट ग्रो होगा। ठीक है, जिसके एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, जास्मिन, बोगनविला। एरियल लेयरिंग, तो हम एयर में ही लेयरिंग करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे जो प्लांट को फोल्ड कर कर वहां से अगर प्लांट को फोल्ड करके वहां पर ऐसा पैच लगा देते तो यहाँ पर रूट्स आ जाते हैं। जब रूट्स आ जाएंगे तो यहाँ से कट कर कर ये पूरे प्लांट को एक इंडिविजुअल प्लांट में ऐसे हम सॉ करेंगे और हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में करते हैं हम, जो ग्राफ्टिंग में ये ध्यान रखना है कि जो नीचे का पार्ट है, रूट वाला पार्ट, उसे हम स्कियोन कहते हैं, और जो शूट वाला पार्ट है उसे हम स्टॉक कहते हैं। ओके, तो स्टॉक एंड स्कियोन को अलग-अलग प्लांट्स के स्टॉक एंड स्कियोन को हम मिक्स कर कर प्लांट करते हैं, ग्रो करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। इट इज एस्पेशली इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन सीडलेस वैरायटीज। ओके, तो स्टॉक इज रेजिस्टेंट टू डिजीज, और दोनों की प्रॉपर्टीज को हम मिक्स करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कंजर्वेशन स्मॉल प्लांट इन रूटेड प्लांट। द रूटेड प्लांट टेकन एज स्टॉक एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड फिजिकली स्टर्डी। इन दिस स्टॉक अ ब्रांच इज इंसर्टेड व्हिच इज नोन एज स्कियोन एंड ग्राफ्ट। The scion and graft is stem cutting from the desired plant. Usually the grafted end of stalk and scion fit well with each other and are bound firm with the tape and rubber. तो उसे हम फिट कर देते, तो फिर वो डेवलप होगा, तो वो मिक्स प्रॉपर्टीज शो करेगा। एडवांटेज ये याद रखना हमें, एडवांटेज दैट इट रैपिड मींस ग्रोथ नो एंड स्प्रेड, तो वो जल्दी से ग्रो करते हैं। ऑफर्स आइडेंटिकल टू पेरेंट, ओके, तो पेरेंट्स हैं, देन डिजायर्ड वैराइटीज कैन बी प्रिजर्व्ड, वैराइटीज लोग से प्रिजर्व रख सकते हैं। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो चांसेस रहते हैं कि वेरिएशन की वजह से हमें जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, वैरायटी चाहिए, वो ना आए, लेकिन जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम प्रिजर्व रख सकते हैं। फूड स्टोरेज ऑर्गन्स अलाउ पेनिट्रेशन एंड सर्वाइवल ऑफ एडवर्स कंडीशन, मतलब डिफरेंट हार्ड कंडीशन में भी वो ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, डेकोरेशन में यूज होता है, उसमें भी मेरा इंप्रूव कर सकते हैं हम इसकी वजह से। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर क्विकर, इजियर एंड लेस एक्सपेंसिव होता है। ओके, तो क्विकर, इजियर एंड लेस एक्सपेंसिव। डिसएडवांटेज क्या रहते थे? ओवर ग्राइंडिंग एंड कंपोजिशन ऑफ स्पेस, यूजलेस, सेपरेटेड आर्टिफिशियल। देन न्यू वैरायटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। ओके, तो यहाँ पर वेरिएशन नहीं आएगी। ओके, तो वेरिएशन की वजह से न्यू वैरायटीज फॉर्म नहीं होगी। देन डिजीज टिपिकल species are every transmitted determinant to the crop। अगर हम स्टियन स्टॉक ले रहे हैं, उसमें कोई डिजीज वाला कोई जीन है, तो वो पूरे प्लांट में फिर डिजीज फैलाएगा। नेक्स्ट इज द माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है कि ओके, मैं समझा देता हूं। माइक्रो प्रोपगेशन में हमारे प्लांट की बॉडी में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल की ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो एक सेल में से पूरे प्लांट की पूरी बॉडी डेवलप कर सके। तो हम वो स्टेम सेल को लेते हैं लेबोरेटरी में हम उसे डेवलप करवाते हैं। ओके, तो डिवीजन होता है, मल्टीपल सेल्स फॉर्म होते हैं, और जब वो एक कैलस फॉर्म कर देंगे, कैलस मींस छोटा सा प्लांट फॉर्म कर देंगे, फिर वो कैलस फॉर्म सॉइल में जाकर जब वो शो करेंगे तो फिर वो एक पूरे प्लांट में डेवलप होगा, और उसके एडवांटेज उसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। और जो फ्लूइड में हम उसे उगाते हैं उसे हम अगर कहते हैं। ओके, तो जेली होता है वो, और हार्मोन्स जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहे वो हम लिक्विड फॉर्म में दिलाते हैं प्लांट में, यहाँ पर वाटर में ऐड कर देते हैं। तो इसमें से बहुत तेज ओके, तो जो प्रोसेस रहती है वो बहुत जल्दी से बढ़ जाती है। देखिए सब प्लांट स्टेम सेल
शिफ्टेड सेल, तो सेल्स लिए, देन अगेन हार्मोन्स, विटामिन्स लिए, एंड देन अगेन प्लांट फॉर्म हुआ। इसके एडवांटेजेस रहते हैं दैट बाय दिस मेथड इनडिफरेंट नंबर ऑफ एडिटिव प्लांट्स, एक सेल्स में से बहुत सारे हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, एंड स्टार्टिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पेरेंट टिश्यू, छोटा ही टिश्यू लेकर हम पूरा प्लांट ऑर्गन बॉडी हम डेवलप कर सकते हैं। और चीज कैरनेशियस, क्विंसिस, एस्पैरागस, माइक्रो प्रोपगेशन बीइंग सक्सेसफुली ट्राइड इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री में इन सारे प्लांट की बॉडीज पर सक्सेसफुली माइक्रो प्रोपगेशन हुआ है और हम यूज करते हैं टू ग्रो मोर प्लांट्स, और जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है, टू ग्रो मोर प्लांट्स एंड प्रिजर्व प्लांट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हमने प्लांट में पॉलिनेशन देखा, जिसकी वजह से पॉलिनेशन ही ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से सारे ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पर डिपेंड है। अगर पॉलिनेशन बंद हो गया तो न्यू फ्रूट, और जो भी हर्बीवोरस प्लांट्स डिपेंडेंट है फ्रूट, ओके, फ्रूट पे, प्लांट्स पे, लीव्स पे, तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फिर उनको फूड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और जब हर्बीवोरस प्लांट भी नहीं रहेंगे तो कार्निवोरस भी नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट, यहाँ पर इकोसिस्टम डिसबैलेंस होकर सारे एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस वे में यहाँ पर हमने सीखा कि हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस इन अ व्हाट मैनर।